चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स में अपने को जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज क्यूब इज इक्वल्स टू योर n into your u। क्यूब इज इक्वल्स टू योर n into your u। n क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। u is nothing but unit and q is your physical quantity। क्लियर है बेटा? एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए हाउ टू डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस वन। See, for example, if I'm asking you the question, find how many poise, which is your poise is your CGS unit of viscosity। याद होना चाहिए आप लोग को। is equal to 1 Poiseuille। Poiseuille is your SI unit of your viscosity। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाउ मेनी poise is the unit of your viscosity। बेटा कौन सी यूनिट होती है? It is your CGS unit। Poise is your CGS unit of viscosity and is asking it is equals to 1 poise। तो how many poise will be equal to 1 Poiseuille। ठीक है ना? विस्कोसिटी का फॉर्मूला तो याद होगा आप लोग को। F is equals to 6 pi neta r into your v। V is your terminal velocity beta, isn't it? Poise is the unit of viscosity, neta is the viscosity, तो viscosity निकाल लीजिए बाहर। Neta is equals to your F divided by 6 pi is a constant, इसका no dimension रहेगा, so it is nothing but equal to your r into v। कल मैंने dimension निकाला था इसका। फोर्स का डायमेंशन mLt power -2 divided by r is your L। वेलोसिटी का डायमेंशन LT पावर -1, isn't it? वेरी गुड। तो ये वाला कितना आ गया? mL पावर -1 T पावर -1। तो अभी फॉर्मूला कैसे यूज कर रहा हूं, देखिए मैं N1U1 will be equal to N2U2, isn't it? N1 मान के चलो मेरे पास निकालना है, दैट इज CGS सिस्टम में, and U1 is in your gram centimeter inverse second inverse, isn't it? Units, that is equals to N2 is nothing but 1 into this one is of your kgs meter inverse second inverse, unit of viscosity beta। देखो this one is represented in terms of kg, this one is your meter inverse and this one is second inverse। CGS सिस्टम में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वही लिख रहा हूँ ना यहाँ पर। इसके मुझे N1 की वैल्यू चाहिए। N1 is nothing but equal to your CGS। N1 is your CGS unit, N2 is your SI system। So N1 will be equal to how much बेटा? N1 will be equal to your, ये हो गया 1, ये हो गया kg यहाँ पर आ जाएगा, ये मीटर इनवर्स यहाँ पर एज इट इज, सेकेंड इनवर्स यहाँ पर इनवर्स इट इज, डिवाइडेड भाई ये पूरा नीचे आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मुझे CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है बेटा। 1 kg is equals to how many grams? 10 power 3 grams into, isn't it? 1 meter is equals to 10 power -2 centimeter inverse into second inverse divided by ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वाला चले गया, ये वाला चले गया, ये वाला चले गया, this one gram and gram also gets cancelled। This one is 10 power 3 into 10 power -2। ये कितना आ गया बेटा? 10 के बराबर आ गया। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई? N1 is equals to 10। So I can say that 10 poise is equals to 1 Poiseuille। 10 poise will be equal to 1 Poiseuille, like N1U1 is equals to N2U2। प्रॉब्लम में N2 दे रखा था, N1 मैंने निकाला, U1 is a unit of poise, U2 is a unit of Poiseuille। आगे बात समझ में सभी को? कन्वर्ट करने का तरीका आ गया बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? How many poise is equals to 1 Poiseuille? डायरेक्टली आप आंसर याद रख सकते हैं, 10 poise is equals to your 1 Poiseuille।
Any doubt to anyone in this one? तो 1 poise कितना होगा बेटा, कोई बताएगा? 1 poise will be equal to how much? 10 poise is equal to 1 poise lily. तो 1 poise अगर पूछा तो कितना बोलोगे बेटा? That is equals to 1 by 10 times of your poise lily. Poise lily is your SI unit of viscosity. Poise is the CGS unit of viscosity. Very good. Done बेटा. Very good. So 1 poise is equals to 1 by 10 kg per meter second. I hope everyone got it. Any doubt to anyone? Sure. Next heading. Very important. Dimensions in terms of other physical quantities. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है बेटा नीट के अंदर. समझो इसको, समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है. डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ योर अदर फिजिकल क्वांटिटीज. सालिया, और एक एग्जांपल देके करो बेटा. मैंने पूछा यहाँ पर how many poise is equals to 1 poise lily. Poise is the CGS unit of viscosity. Poise lily is the SI unit of viscosity. So I am using the formula N1 U1 is equals to N2 U2. N1 is the numerical value बेटा, ये निकालना है अपने को CGS unit में. U1 is in your CGS system ले रहा हूँ मैं basically, and U2 I am taking in the SI system. तो पहले मैंने क्या किया, विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला. नीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय R इनटू V. 6 पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं रहता, कल भी लिख पाया था मैंने. विस्कोसिटी का डायमेंशन आ गया m l पावर -1 t पावर -1. एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. सीजीएस यूनिट में इसकी यूनिट हो गई ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. अपने को n1 निकालना है, n2 की वैल्यू दे रखा है 1. देखो यहाँ पर n2 की वैल्यू देखा है, दिस इज योर n2 की वैल्यू दे रखा है. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. n1 सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. n2 की वैल्यू है 1. इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ योर विस्कोसिटी इज केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. अब n1 निकालना है तो ग्राम पूरा नीचे आ जाएगा ना बेटा इधर. तो केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये वाला नीचे आ गया ग्राम. तो मुझे अब केजी को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो 1 kg इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 सेंटीमीटर. 1 सेकंड सेकंड ही रहेगा, तो एवरीवेयर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड गेट्स कैंसिल. तो बचा कितना, 10 पावर 3 और 10 पावर -2. 10 पावर 3 10 पावर -2 किसके बराबर आ गया, 10. तो मेरे पास n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10. तो n1 की वैल्यू कितना हो गया, 10 डाल दो यहाँ पर. तो मुझे ये पता चला कि 10 poise is equals to 1 poise lily, or 1 poise is equals to 1 by 10 poise lily. क्लियर है सभी को? एनी डाउट एनीवन? और प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, डोंट टेक टेंशन. मैं फिलहाल तो थोड़ा कॉन्सेप्ट खत्म कर ले जल्दी जल्दी. चलो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट. Dimensions in terms of your other physical quantities बेटा. देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन के हिसाब से मैं करवा दूं आपको. मान के चलो see this question. Expression for time in terms of capital G. कैपिटल G क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड C मतलब स्पीड ऑफ लाइट is proportional to what? Is proportional to, ये वाला क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन समझो.
मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग क्या लिखा देखो मैंने, डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ योर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ योर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है देखो, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम, मुझे टाइम निकालना है इन टर्म्स ऑफ जी, इन टर्म्स ऑफ एच और इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब मुझे डिपेंडेंस मालूम नहीं है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ कैसा, टाइम इज टेलिंग दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू योर जी, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू योर एच एंड टाइम इज प्रोपोर्शनल टू योर सी। इन दोनों तीनों को मिला के लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू योर जी, टी इज प्रोपोर्शनल टू योर एच, टी इज प्रोपोर्शनल टू द सी। अब इसका पावर्स नहीं मालूम तो मैं कुछ पावर्स का नाम दे दे रहा हूँ, मान के चलो g टू द पावर ऑफ ये है, h टू द पावर ऑफ p, c टू द पावर ऑफ c, कुछ भी ले सकते हो, x y z भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। t is proportional to your g to the power of a, h to the power of b, c to the power of c। अगर आप a b c की वैल्यू निकाल लोगे ना, then we can write the relation for it। ठीक है ना, तो मैं इसको लिखने का तरीका देखो कैसा कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल देंगे तो t is equals to, this will be equal to g, g का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2 टू द पावर ऑफ योर, ये कल करवाया था मैंने। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता है बेटा, m l पावर 2 t पावर -1 टू द पावर ऑफ योर b, डन। और c का वेलोसिटी l t पावर -1 टू द पावर ऑफ योर c। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, डायमेंशन ऑफ t कितना होता है बेटा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा बेटा, पूरा m के एक जगह लिख लीजिए, m पावर माइनस ये है, यहाँ पर भी m है, तो ये m पावर कितना है b, तो ये m पावर ये प्लस b हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देन उसके बाद l टू द पावर ऑफ 3a, फिर यहाँ पर देखिए l टू द पावर ऑफ प्लस 2b प्लस ऑफ योर c, देन उसके बाद आ गया t, t टू द पावर ऑफ -2a -b -c, आ गया लिखने का तरीका सभी को। मैंने सिर्फ पूरे m टर्म्स का, l टर्म्स का, t टर्म्स का इंडिविजुअल लिखा है बेटा। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, दिस इज m टू द पावर ऑफ -a, m टू द पावर ऑफ योर b, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, m टू द पावर ऑफ -a प्लस ऑफ योर b, फिर उसके बाद मैंने l टू द पावर ऑफ योर 3a, उसके बाद l टू द पावर ऑफ 2a, l टू द पावर ऑफ c लिख लिया, ये हो गया l टू द पावर ऑफ 3a प्लस ऑफ योर 2c। उसके बाद मैंने लिखा t टू द पावर ऑफ -2a, t टू द पावर ऑफ -2a, t टू द पावर ऑफ -b, t टू द पावर ऑफ -b, t टू द पावर ऑफ -c, t टू द पावर ऑफ -c। आ गई बात, किसी को समझ में आया? सर t का पावर 0, नहीं t का पावर 0 नहीं होगा बेटा, सॉरी मैं गलती से लिख दिया, यहाँ पर टाइम है ना बेटा, जिसका तो पावर 1 होगा, t का तो टाइम हो गया ना, टाइम का पावर हो गया 1। अब क्या करो आप, कंपेयर द पावर्स ऑफ द masses on the LHS and right and the RHS, compare powers of mass L and time on LHS and RHS। मतलब फर्स्ट वाला देखो, माइनस यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू -a प्लस b, इसलिए उसके बाद 0 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b प्लस c, उसके बाद -2a कितना होगा, 1 के बराबर होगा, सो दिस वन इज इक्वल्स टू योर 1। हाँ, so this will be equal to 1 is equals to -2a -b -c, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, माइनस से इधर चले जाएगा, तो ये इज इक्वल्स टू योर b, ठीक है ना, माइनस से इधर चलेगा ना बेटा, ये इज इक्वल्स टू योर b, क्लियर बेटा, ये और b सेम रहेंगे, तो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर 3a plus of your b is nothing but equal to your a plus of your c, that is equals to 0। देन बेटा तो ये कितना बन जाएगा, 5a plus of your c is equals to 0, isn't it? तो 5a will be equal to your how much will be minus c, so a value will be equal to -c divided by your 5,
तो इसमें से ये वैल्यू निकाल लीजिए, isn't it? This is 1 is equals to minus 2, ये a की वैल्यू किसके बराबर है, b minus b minus of c, तो कितना बन जाएगा minus 3b minus c, this is your 1, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, c की वैल्यू कितनी आ रही है, आया किसी को। हाँ, ऑप्शन चेकिंग इज ऑल्सो बेटर बेटा, ऑप्शंस अगर आपको दे रखा है तो उसे भी कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ पहले, तो उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो उसके हिसाब से हम लोग करते चले जाएंगे। बेसिकली प्रूव करने का एक मेथड तो भी आना ना बेसिकली पहले अपने, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू इक्वल है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सो दिस विल कम आउट फॉर मी इक्वल टू 1/2, ओके। यानी अगर ए की वैल्यू 1/2 है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ c/5, यानी c की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 5/2, ठीक है। ये और b की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, t is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर g टू द पावर ऑफ ये मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, उसके बाद क्या है h टू द पावर ऑफ 1/2, c टू द पावर ऑफ -5/2, यानी t will be proportional to under root of g into h divided by your c to the power of 5, so this will be the answer for this। आ गया, हमें क्लियर। और एक कराऊं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। Sir, how a and b is equals to 1/2? ये इसको सिंप्लीफाई करना है ना बेटा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा देखो मैंने यहाँ पर 5a plus c, 5a is equals to minus c, तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 1 plus 3b is equals to what, this is minus c, है कि नहीं। सो इट इज 1 plus 3b is equals to minus c की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 times of your a from this equation, है कि नहीं। Yes. Isn't it? अब a and b are both of them same, isn't it? So it is 1 plus this will become for me 4a, that is equals to 5a, ये इधर चले जाएगा, so this is 1 is equals to 5a minus 4a, कितना आ जाएगा बेटा 1a. this will be equal to 1a, isn't it? Yes. इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, I'll write here, this is my equation number 1, this is my equation number 2 and this is my equation number 3, तीनों को सिंप्लीफाई कर लो, that will give me the answer, done। Yes. और डिटेल ही करूंगा एक्सप्लेनेशन इसका, कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो लेट मी डू इट वंस अगेन फॉर यू, नॉट एन इश्यू, मैं आपको आराम से फिर कैलकुलेशन करवा दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, माइनस ए प्लस बी, isn't it? पावर कितना है बताइए, कितना है इक्वेशन नंबर 1 में, ये पावर मैंने इसको इक्वेट करा 0, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 0, और -2a माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू 1, माइनस इधर चले गए तो a इज इक्वल्स टू b आ गया,
ठीक है ना। सो दिस इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, b इज आल्सो आई एम टेकिंग a प्लस ऑफ योर c, ये हो गया 5a प्लस ऑफ योर c, दिस इज योर 0, isn't it? And if 5a is equals to minus c, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, minus c by 5, आराम से ऑप्शंस दिया रहता ना तो मैं I would have been check it with the options, isn't it? अब ये यहाँ पर कितना देखो, minus 2a minus b minus c, isn't it? So this is your 1 is equals to minus 2a minus of your a minus of your c. So this will be equal to how much for me, minus 3a minus c. तो यहां से मैं माइनस सी लिख सकता हूं ना बेटा, ये वाला देखो 5a is nothing but equal to minus c, यानी this will be equal to minus 3a minus c will be equal to how much for me बेटा, plus 5a minus c की वैल्यू, तो कितना आ गया, minus 3a plus 5a कितना हो जाएगा, minus 2a आ गया। Yes, sir. और हाइयर टर्म का जो वैल्यू है वो एडिशन हो जाएगा ना, सो दिस विल बिकम फॉर मी प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, अगर ए की वैल्यू 1/2 आ गई तो बी की भी वैल्यू 1/2 आ गई, अगर ए की वैल्यू 1/2 आ गई तो 5 into 1/2 विल बी इक्वल टू माइनस सी, आ गया। Yes, sir. चलिए और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए जल्दी से। हाँ बेटा प्लस आ जाएगा। Give me the answer for this question. If momentum, time and energy are chosen as basic quantities, yani fundamental quantities. So my question is, find dimensions of, first question, mass, and second question, force. चलो ट्राई करिए। लास्ट में फिर कैसा करना, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगा बेटे, क्योंकि लास्ट में मैंने क्या किया, ए बी सी आ गया है ना, तो t was proportional to g to the power of a, h to the power of b, c to the power of c लिखा था, तो t is proportional to g, a to the power of कितना है 1/2, this is your h to the power of b, b is also 1/2 and c to the power of a कितना आ गया बेटा, minus of your 5/2, ठीक है ना। तो t is equals to your under root of your, ये पूरा रूट है तो g आ गया, h आ गया, c आ गया to the power of 5, माइनस c है ना तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो now see this question better, very important model. If momentum, time and energy are chosen as the basic quantities, find the dimensions of your mass. Momentum मतलब p is equals to m into v, dimensions m into l t power -1, time t का dimension t, यानी it is m0 l0 t1, then energy का dimension will be equal to how much will be m l square t power -2. These are all of them are taken as of your fundamental quantities. We need the dimension of the mass. यानी तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, मास पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो मैंने कैसा बोला था लिखने के लिए, m is proportional to your p, that is also proportional to the power of t, that is also proportional to the power of your e, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इसके पावर्स मुझे नहीं मालूम तो मैं इसका पावर्स ले रहा हूँ, लाइक से फॉर एग्जांपल ये इसका b और इसका c। अब डायमेंशन लिखना है LHS और RHS, तो मास इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k की वैल्यू अपन 1 ले रहे हैं, सो दिस इज योर p टू द पावर ऑफ a, t टू द पावर ऑफ योर b एंड e टू द पावर ऑफ योर c, आ गया। अब डायमेंशन लिख दो जल्दी से, डायमेंशन ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटा, m पावर 1 l पावर 0 t पावर 0, मोमेंटम का डायमेंशन अभी आया अपने, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ डायमेंशन बेटा, इट इज m l पावर -1 टू द पावर ऑफ योर a, then it is t to the power of your b, then energy is m into l square t power -2 to the power of your c। अब इसको पावर को इक्वेट करके लिख लीजिए, पूरे मासेस को लिख रहा हूं मैं, पहले देखिए बेटा m to the power of a,
यहाँ पर mi. So I can write this one as of your m to the power of your a plus of your c. आ गया. उसके बाद यह लिख लीजिए L to the power of your a plus L to the power of 2c. देन उसके बाद क्या है t to the power of कितना है बेटा माइनस ये है प्लस b है माइनस 2c है. दिस इज m पावर 1 L पावर 0 t पावर 0. चलो जल्दी करके बताइए. चलिए जल्दी बताइए कितना आ रहा है. पावर्स को कंपेयर करिए. a प्लस सी किसके बराबर है 1 के बराबर है. देन a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है. दिस सेल को कंपेयर कर रहा हूं. देन माइनस a प्लस b माइनस 2c किसके बराबर है 0 के बराबर. दिस माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. अब इन तीनों को सॉल्व करना है मुझे. कैसे सॉल्व करेंगे बताइए. a की वैल्यू कितनी आएगी b की वैल्यू कितनी आएगी c की वैल्यू कितनी आएगी. फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए बेटा. फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0. तो a इज इक्वल्स टू माइनस 2c. ठीक है ना. अगर a इज इक्वल्स टू माइनस 2c है तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर राइट नाउ. फ्रॉम इक्वेशन 1 a की जगह क्या लिख रहा हूँ a प्लस c इज इक्वल्स टू 1 है ना. तो a की जगह माइनस 2c लिख दो. तो ये हो जाएगा माइनस 2c प्लस c इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो c की वैल्यू कितनी आ रही बताइए. माइनस 2c प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस c इज इक्वल्स टू 1. यानी c की वैल्यू कितनी आ गई -1. अगर c की वैल्यू -1 आ गई देन आई कैन से दैट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा. दिस आई एम टेकिंग इट एज इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इक्वेशन 4 2. a इज इक्वल्स टू -2 c की वैल्यू है -1. तो ये हो गया +2. तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +2. अगर a की वैल्यू +2 आ गई, a आ गया, c आ गया, b होना चाहिए. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 माइनस a यानी a की वैल्यू कितनी है बेटा -2 प्लस b -2 इंटू c की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू 0. यानी -2 प्लस b माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस 2 0 कैंसिल हो जाएगा. तो b की वैल्यू आ गई 0. तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई. तो नाउ आई कैन से दैट so I can say that mass is directly proportional to p square and e power of -1. ठीक है ना. a b c पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा. c क्या था मेरे पास राइट नाउ वहां पर e, isn't it? b की वैल्यू कितनी है 0. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट टाइम. तो m is directly proportional to p square e power -1. क्लियर बेटा. एनी डाउट. So this is the way how do we get the questions on this one beta in the units and dimensions part के अंदर.
चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करिए. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव मी द आंसर. द फोर्स ऑफ interaction, the force of interaction between two atoms is given by F is equals to alpha beta exponential to the power of minus of your x square divided by alpha k into t, where x is distance, k is Boltzmann's constant, k is your Boltzmann's constant, t is temperature, and alpha and beta are two constants. Alpha and beta are two constants. The question is the dimensions of beta is. The dimensions of beta is. Take it as an homework. I'm giving an options m0 L square t power minus 1. Second option is m square L t power of your minus 1. Third option is m L t power minus 2. And fourth option is m square L square t power minus 1. Take it as an homework and try to do it better. मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल एक मॉडल करवाया था मैंने इस पे, इसलिए मैंने आपको दिया हुआ है, सादा कुछ भी नहीं. आप लोग अपनी तरफ से एक बार ट्राई करिए आराम से. चलो एरर्स का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर पहले अपन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा. एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद अपने को रिलेटिव एरर के बारे में मालूम होना चाहिए, एंड उसके बाद अपने को परसेंटेज एरर के बारे में मालूम होना चाहिए. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और लास्ट में पढ़ेंगे थोड़े इसके ऊपर क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. Isn't it? अगर डेप्थ में जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बेटा. I'm not going in much depth for you, so just try to understand the way I'm taking the class for you. So concepts देखिए अभी यहाँ पर जल्दी से फर्स्ट वाला देखिए. I'm talking about first one is about your absolute error. Absolute error बोलो, and we are talking about your relative error, and we are talking about your percentage error. ठीक है ना. अब देखो कभी भी फिजिक्स के अंदर अपन एरर बोल रहे हैं तो एरर का मतलब क्या होता है बेटा? एरर इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर, रिमेंबर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ योर मेजर्ड वैल्यू. ये बात क्लियर है सभी को? थ्रू आउट द फिजिक्स में जब भी हम लोग एरर यूज कर रहे हैं वर्ड, एरर इज इक्वल्स टू योर ट्रू वैल्यू माइनस योर मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ योर मेजर्ड वैल्यू. डन. इसको प्रूव करने का मेथड देख लीजिए बेटा. स्टेप नंबर 1, पहले क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे बेटा. इसका एवरेज निकालेंगे. एवरेज कैसे निकालोगे? रीडिंग 1 प्लस रीडिंग 2 प्लस रीडिंग 3 प्लस जितनी भी रीडिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट से आर एन डिवाइड बाई एन डाल दो. दैट विल गिव मी द एवरेज ऑफ द रीडिंग. एंड वी टेक दिस वन एज, वी टेक दिस R average as true value, बात समझ में आई? स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं? जितने भी रीडिंग ले रहे हैं, R is nothing but रीडिंग बेटा. एक एक्सपेरिमेंट करते से टाइम पे, isn't it? तो जितने भी रीडिंग ले रहे हैं उस रीडिंग के एवरेज, यानी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया आपने, सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया, थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट किया, जितने बार कर रहे हैं उतने बार का बाई एन कर लेना है. देन वी ऑलवेज टेक दिस एवरेज एज ऑफ योर ट्रू वैल्यू. बात समझ में आए सभी को? चलो
स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर बेटा। देखो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका, एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 जो फर्स्ट रीडिंग आई माइनस उसमें से R एवरेज निकालो। जो पहले रीडिंग आई ना बेटा, वो रीडिंग में से इसका पूरा एवरेज का वैल्यू आता ना, वो एवरेज निकालना। उसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड वन, तो R2 करो माइनस R एवरेज। उसी तरह से R3, R4, R5 गो ऑन करते चले जाओगे। कब तक करोगे आप? जितना आपको रीडिंग दे रखा उतना, यानी Rn विल बी इक्वल टू रीडिंग ऑफ योर n माइनस R एवरेज। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार, एरर के अंदर हम लोग जब भी एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालो या रिलेटिव एरर निकालो या परसेंटेज एरर निकालो, एरर निकालने का तरीका, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्टेप नंबर वन, जितनी भी बार आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उस रीडिंग का एवरेज निकालना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on up to Rn डिवाइडेड बाय n। Now we take this R average as always true value। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो फर्स्ट रीडिंग जो आई ना आपको R1, वो R1 में से R एवरेज को सबट्रैक्ट करोगे, तो दैट विल गिव मी द एब्सोल्यूट एरर। उसी तरह से R2 में से R एवरेज को सबट्रैक्ट करो, दैट विल गिव मी द एब्सोल्यूट एरर। So on like that one. So Rn is equals to your Rn minus R average, isn't it? इसमें सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड्स दे लेते हैं। Take only magnitudes, take only magnitudes, ठीक है ना? हाँ, R average is a true value, R average is a true value, ठीक है ना? स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग? इसका मीन लेंगे अभी, मीन absolute error। Step number 3 is mean absolute error। Mean absolute error I'm writing it as delta R का average, इसको मीन बोलता है, यानी mod of delta R1 plus mod of your delta R2 plus mod of your delta R3 plus so on up to mod of delta Rn divided by जितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उतना, तो that will give me the mean absolute error। आ गई बात समझ में सभी को? 3 स्टेप्स में आंसर बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला ना बेटा, एब्सोल्यूट एरर में आप चाहे R1 माइनस R2 लिखो और R1 माइनस R एवरेज लिखो, वी ओनली टेक द मैग्नीट्यूड, साइन से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो फाइनल रीडिंग कैसे निकालेंगे आप? फाइनल रीडिंग कैसे निकालेंगे? फाइनल रीडिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू, फाइनल रीडिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू R एवरेज प्लस R माइनस डेल्टा R का एवरेज। दिस इज योर फाइनल रीडिंग। फिर से एक बार जल्दी से, एरर कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, एवरेज निकालने का तरीका, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उतने बार का उसका एवरेज ले लीजिए, एंड दिस वी ऑलवेज टेक इट एज ट्रू वैल्यू। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका, जो अब आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो फर्स्ट रीडिंग आई ना, वो फर्स्ट रीडिंग में से R एवरेज निकालो। उसी तरह से फ्रॉम R2 you take it as R average, R3 go on like that one, so that will give me the absolute error। So reading minus R average, and you take only the magnitude of this one better, don't take the sign convention, take only the magnitude। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा R average is equal to mod of R1 mod of R2 mod of R3 divided by n, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, सो इसलिए डेल्टा R1 से लिख रहा हूं। तो फाइनल रीडिंग लिखने का तरीका देखो, फाइनल रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर R average प्लस R माइनस ऑफ योर R। अगली बात समझ में सभी को आ गया? Am I clear with this one? Yes, sir. Now this is something very important, जो last year अपने को नीट वगैरह क्वेश्चन में आए थे क्वेश्चंस, that is your combination of errors, combination of errors। जब आप कंबाइन कर रहे हो ना एरर्स को, उसको करने का तरीका,
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब आई कैन से दैट एरर इन मेजरमेंट, error in measurement is very small, is very small. जैसे मान के चलो फर्स्ट वन, देखो मुझे सम निकालना है और डिफरेंस निकालना, समझो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटा। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोग के लिए, मान के चलो लेंथ इज गिवन फॉर मी 4.1 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ दे रखा है मेरे को 3.3 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मुझे इसका सम निकालना है, डिफरेंस निकालना, इसका मुझे सम निकालना है, डिफरेंस निकालना। इसका सम मतलब कितना हो जाएगा बेटा, इसका सम मतलब एस इज इक्वल्स टू एल प्लस बी करोगे, एल प्लस बी करोगे तो क्या करोगे बेटा, एल को और बी को ऐड करोगे, isn't it? तो देखो कितना आ रहा है, एनीवन 4.1 प्लस 3.3, 3 प्लस 1 ये हो गया 4, 4 प्लस 3 7, तो ये कितना हो गया 7.4 प्लस आर माइनस, error will be 0.1 plus 0.1, this will be equal to 0.2 centimeters, आ गया, is it clear? उसके बाद डिफरेंस देखो, डिफरेंस करने के लिए, so difference will be equal to how much बेटा, difference is equals to your L minus B, यानी 4.1 minus 3.3 कितना आ जाएगा बेटा 0.8 प्लस आर माइनस 0.2, isn't it? ये जो एरर है ना वो कभी भी ऐड ही करोगे आप, सबट्रैक्ट नहीं करोगे, तो याद रख लीजिए, सिर्फ इसको सबट्रैक्ट कर रहे हो, एरर को हम लोग एज इट इज प्लस आर माइनस ऑफ योर 0.2 में लिख रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, एनी डाउट टू एनीवन इन दिस वन? सम इज इक्वल्स टू योर एल प्लस बी, डिफरेंस इज योर एल माइनस बी, आ गया। चलो नेक्स्ट वाला देख लीजिए, प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट और डिवीजन, इसका बहुत बड़ा कहानी है, उसको ज्यादा मत कंसंट्रेशन करिए। मान के चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी है P that is depending on your some D, x to the power of A, y to the power of B and z to the power of C. So error कितना हो जाएगा बताइए बेटा, इसके अंदर error in x is delta x, error in y is delta y, error in z is delta z. So my question is find percentage error, find percentage error, ये मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड परसेंटेज एरर, इसको लॉन वगैरह लेके करते हैं बेटा, बट जस्ट आई ट्राई टू रिमेंबर हाउ आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ये जो P दे रखा है ना, इसको एरर में वेरी वेरी स्मॉल लिख रहे हैं जब अपन, तो आई कैन राइट दिस वन एज डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। अब इसको आप प्रूव करते बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर हम एरर लिख रहे हैं, ओनली द परसेंटेज एरर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा dp डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू, ये जो d है ना, isn't it? So d is some constant, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, कभी भी 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास 0, तो उसको 0 मत ले लीजिए। देन x टू द पावर ऑफ ये, यानी जो पावर है ना ये, इनटू dx डिवाइडेड बाई x, प्लस उसके बाद b dy डिवाइडेड बाई y माइनस c इंटू dz डिवाइडेड बाई z, इतना ही होगा, ठीक है ना। एरर इज ऑलवेज एडेड, हाँ वही गलती करते हैं। यहाँ देखिए बेटा डेल्टा p बाई p इज इक्वल्स टू, मैं आपको कराने का तरीका वही था, जो पावर है ना पावर का पहले लिख लीजिए फिर उसका एरर है। अगर प्रॉब्लम में पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अगर ये वर्ड यूज कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन P, तो जब ये बनेगा डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू ये इंटू डेल्टा x बाई x प्लस b इंटू डेल्टा y बाई y, डेल्टा y बाई y प्लस c इंटू डेल्टा z बाई z, जब प्लस आ जाएगा, ये बात अपने को याद रखना। क्लियर है?
स्माइल, वही देख रहा हूं मैं। प्लस जब आएगा जब अगर एक वर्ड मैक्सिमम पॉसिबल एरर यूज करेगा तो ही प्लस आएगा। अगर खाली एरर पूछ रहा है तो इट विल बी योर माइनस। इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन में लिखा है, देख लीजिए, एवरेज में नहीं लिखा है, डेल्टा में नहीं लिखा हुआ है। स्माइल, am I clear with you? am I clear बेटा? अगर परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज एरर, तो क्या करना है, इंटू 100 कर लेना बस, isn't it? To find the percentage error, what we can do, we just do it into 100. So delta x by x is nothing but what बेटा, relative error in Z. ये देखो ये वाला जो है ना, delta x by x, I'm writing here. Delta x by x is what for me? Or relative error only. Relative error in x. उसी तरह से delta y by y is relative error in y. Delta z by z is relative error in z. Clear? Sir, maximum error is cast, then we don't consider matlab numerator or denominator. Yeah, in the if I is using a word a maximum, then कहीं पर भी will never get the negative. That is the basics of your ln वगैरह का डेरिवेशन करते हैं. If he is using a word called as a maximum, this minus sign will convert into plus sign. अगर maximum error नहीं पूछ रहा है, then we need to write with the minus sign. Sir, only error पूछा तो first one use करना है. हाँ बेटा, for maximum possible error के लिए second one use करना. Yes बेटा, very good. आ गया? Any doubt to anyone? Word maximum is important. Yes. Check. See this question, madam. A physical quantity. A physical quantity Z depends on 4 observables A, B, C, and D as Z is equals to A square B to the power of 2 by 3 divided by root of your C into your DQ. Okay. The question is the percentage of error in the measurement of A, B, C, and D are 2%, 1.5%, 4%, and 2.5%. So the question is the percentage error in Z is. चलो ये बताइए जल्दी से. Options are 12.25%. Second option is 14.5%. Third option is 16.5%. And fourth option is 13.5%. A physical quantity Z depends on 4 observables A, B, C, and D, where Z is equals to A square B to the power of 2 by 3 divided by root C divided by D cube. The percentage error in the measurements of A, B, and C are given as 2%, 1.5, 4%, 2.5. The percentage error in Z. Percentage error in Z. बोलना आंसर. सर विल डू. हाँ करिए बेटा, 2 मिनट का टाइम लेके करिए आराम से. आप लोग करना इंपॉर्टेंट है, मैं करना इंपॉर्टेंट नहीं. मैं अभी आपको मेथड बता दिया. एक बार मैं आपको फॉर्मूला करा देता हूं लिख के, आप उसके बाद ट्राई करिए. Z की वैल्यू क्या है बेटा? Z is equals to A square B to the power of 2 by 3 divided by ये है root C into D cube. अब इसका एरर कैसे लिखते हैं बेटा, जल्दी से बताइए. डेल्टा Z divided by Z is equals to 2 into डेल्टा A by A. पावर जो रहता है ना वो पहले लिख लेना है. प्लस 2 by 3 into डेल्टा B by your B प्लस C मतलब क्या, रूट C मतलब क्या होता है बेटा, C पावर 1 by 2 होता है ना.
तो यहाँ पर 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी लिख लिया, ठीक है ना, प्लस दिस वन इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी. 14.5. वेरी गुड, 14.5. वन स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर. अब इसको हम लोग करना क्या है बेटा, प्रॉब्लम में क्या पूछा है, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर मतलब क्या, डेल्टा z बाई z इंटू 100 ना, isn't it? That is equals to your 2 into ये डेल्टा a by a कितना दे रखा है 2 प्लस दिस वन इज योर 2/3 इंटू ये कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 1.5 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा c by c कितना दे रखा है 4%, isn't it? The next one is given how much for me, or 3, isn't it? So this will be equal to 3 into this one is given as how much for me, 2.5% into 2.5% into 100 कर रहे हैं ना. So 2 into 2, this is 4. This is 2/3. 1.5 is nothing but 3/2. So this will be equal to 1 plus this one is 2 ones are 2 2s are. This is 2 plus 2 into 25 3s are 7.5, 75. So that will come out for me 7.5, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, 14.5%. आ गया सभी को? Any doubt to anyone? सर हाँ बेटा. सर इसमें मैक्सिमम एरर नहीं पूछा है ना, तो हम लोग परसेंटेज इसका बोला है ना, परसेंटेज एरर बोला है. परसेंटेज मतलब मैक्सिमम ही होगा. ओके ओके, परसेंटेज. खाली अगर एरर पूछता तो अलग बात होती है, लेकिन इसमें वर्ड क्या यूज किया हुआ है, परसेंटेज एरर. परसेंटेज में मतलब क्या, मैक्सिमम एरर ही होता है. आ गया? हाँ, मैक्सिमम एरर इज नॉट आस्क्ड, बट अगर ये परसेंटेज एरर नहीं पूछता तो वी वुड हैव बीन यूज द माइनस साइन. क्लियर? नो डाउट. और एक आप लोग करोगे क्या? Yes, sir. चलो आप ट्राई करो और एक. Everyone should give me the answer. आफिया मन्नान. हाँ बेटा, माइनस साइन जब यूज करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया हुआ है, खाली एरर पूछ रहा है प्रॉब्लम में, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, मैंने इंटू 100 नहीं किया. अगर मैक्सिमम एरर होता तो माइनस पॉजिटिव में प्लस में कन्वर्ट हो जाता. खाली परसेंटेज एरर हो रहा है तो माइनस ले रहे हैं. परसेंटेज एरर मतलब इंटू 100 कर रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज बिकम फॉर मी पॉजिटिव. परसेंटेज एरर इज नथिंग बट मैक्सिमम एरर ओनली बेटा. परसेंटेज एरर इज नथिंग बट ऑफ योर मैक्सिमम एरर. डन बेटा. चलो और एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए. Write this question. A physical quantity P is related with 4 quantities A, B, C and D as follows. P is equals to AB divided by C power 5/2 and D power 1/2. The question is the percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4%. My question is the maximum percentage error in P is. चलो करिए सभी लोग.
All 24 students should give me the answer. Everyone. Option is 23.5%. ऐसे वाला आता है बेटा 12.5%, 16%, 8%. 8%, sir. Maximum percentage error in P. 12.5. और Madhya, फिर those 12.5, 12.5, maximum are going with 12.5. Great. Someone has been gone with 8%. देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ. आगे यहाँ से भी को कर दो मैं. चलो जल्दी से बताओ. Delta P by P into 100 is equals to delta A by A into 100. I'm writing directly, isn't it? Plus ये हो जाएगा delta B by B into 100 plus this is 5 by 2 into your delta C by C into 100 plus half into delta D by D into 100. परसेंटेज एरर पूछा है, तो ये वैल्यू डाल दीजिए सीधा सीधा. तो ये वैल्यू कितनी है बेटा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना दे रखा है? 1%. देखो यहाँ पर दिस इज गिवन एज 1%, देन 2%. तो ये हो गया 1% प्लस ये हो गया 2% प्लस दिस वन इज 5 by 2 into your 3%, isn't it? Plus this one is 1 by 2 into your 4%. आ गया? कितना आ रहा? 12.5%. Second option will be the answer. Clear? Any doubt to anyone? Chali, very good. Sir, yes sir, one more. वैसे करते चलोगे तो दुनिया के निकलते रहते हैं बेसिकली. होप एवरीवन गॉट एन आइडिया राइट. ठीक है ना? चलो और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. आप लोग ट्राई करिए बेटा. इन ये सिस्टम ऑफ unit of force is 100 Newton. Unit of length is 20 meters. And unit of time is 100 seconds. My question is, the unit of mass in this system of unit is, options are 10 power 5 kg, 10 power 4 kg, 5 into 10 power 4 kg, and fourth one is 5 into 10 to the power of 5 kg. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n1 u1 is equals to n2 u2. n1 u1 is equals to n2 u2. I have given you the hint. चलो ट्राई कर लीजिए. n1 u1 is equals to n2 u2. In a system of unit of force is how much beta? 100 Newton. And unit of length is 20 meter. Unit of time is 100 seconds. The unit of mass in this system of unit will be equal to your how much? मास की वैल्यू कितनी होगी? फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है यहाँ पर?
Force is the physical quantity. Force is the physical quantity. तो फोर्स का डायमेंशन लिखना है. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml/-2. याद है? n1 मतलब कितना है बेटा? 1. फर्स्ट वन में मुझे मास नहीं मालूम है, तो m. लेंथ की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर्स. टाइम कितना है? 100 सेकंड. इनवर्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू n2. n2 की वैल्यू 100 यूनिट्स दे रखा है प्रॉब्लम में, इनटू 1 kg इनटू 1 मीटर इनटू 1 सेकंड टू द पावर ऑफ -2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? कैपिटल M इज इक्वल्स टू 100 इनटू ये हो गया मेरे पास 1 kg इनटू दिस वन विल बी इक्वल टू 1 मीटर. 20 नीचे आ जाएगा तो 20 मीटर इनटू दिस वन विल बी इक्वल टू 1 सेकंड ये वाला और ये वाला में चले जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 100 टू द पावर ऑफ 2. ठीक है ना? मीटर मीटर चले गया, सेकंड सेकंड भी यहाँ पर चले गया. सो दिस योर 1/100 स्क्वायर. इनवर्स में है ना, तो 100 आ जाएगा. तो कितने में चले गया देख लीजिए. सो दिस इज योर 100 में से ये 2 और ये भी चले जाएगा. तो 1 जा मतलब ये आ जाएगा 5. सो दिस इज योर 5 इंटू 10 पावर. ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 kgs. Five into 10 to the power of 4 kgs. Very good. आया बेटा? ये देखो बेटा, ये सीजीएस सिस्टम है और ये एसआई सिस्टम है. एसआई सिस्टम में n की वैल्यू दे रखी है 100, isn't n1 की वैल्यू कुछ भी नहीं दिखी है, हम टेकिंग 1 और यूनिट इज फोर्स. फोर्स का मास इज योर m. एसआई सिस्टम इट इज गिवन एज 20 मीटर, isn't it? And SI unit of time is 100 seconds. The unit of this system will be equal to your how much? ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन करवाता हूँ. आप जरा दिमाग लगा के करने की कोशिश करिए. बी लिटिल बिट केयरफुल बेटा. अच्छे वाले क्वेश्चन है बेटा ये वाले. देखो, अगर मेरे पास 10 न्यूटन ऑफ फोर्स है, ऐसा वाला ही फ्रेम कर रहा हूँ. हमारे 10 न्यूटन ऑफ द फोर्स is to be converted in a new system. Same formula लगाना है फिर से. In a new system of units in which unit of mass is 10 kg, comma, unit of length is 10 meters and unit of time, पहले क्वेश्चन को समझिए बेटा. unit of time is 10 seconds, isn't it? The numerical value of given force in new system of units. First option is 10, second option is 100, third option is 1000 and fourth option is 1. चलो ट्राई करिए. पहले क्वेश्चन समझिए बेटा. First try to understand the question. 10 Newton of the force is to be converted into the new system. Newton is your SI unit beta, isn't it? That is to be converted into a new system of units in which the unit of mass is 10 kg, unit of length is 10 meter and unit of time is 10 seconds. The numerical value of the given force in the new system is how much? Yani N1 U1 is equals to N2 U2.
मान के चलो मेरे पास n1 की वैल्यू मालूम है, n1 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन्स, मुझे चाहिए n2 की वैल्यू, तो n2 निकालो इसमें से, n2 वैल्यू विल बी इक्वल टू योर n1 इंटू ये बन जाएगा मेरे पास u1 डिवाइडेड बाई u2, यानी SI सिस्टम डिवाइडेड बाई CGS सिस्टम। u1 इज इन योर SI सिस्टम बेटा एंड u2 इज इन योर CGS सिस्टम। तो अब इसको वैल्यूज डाल दीजिए, फोर्स का ही है ना, तो n2 इज इक्वल्स टू दिस वन वैल्यू विल बी इक्वल टू 10। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू L T पावर -2। मास इज मेजर्ड इन 1 kg डिवाइडेड बाई दे रखा कितना है वो 10 kg CGS अदर यूनिट में, ठीक है ना। उसके बाद 1 मीटर अदर यूनिट में कितना दे रखा है बेटा 10 मीटर्स। देन टाइम SI सिस्टम में 1 सेकेंड एंड अदर सिस्टम इट इज 10 seconds टू द पावर ऑफ -2। बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हम लोग वी आर कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम बेटा। जब आप एक सिस्टम में अदर सिस्टम कन्वर्ट करते हैं देन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला n1 u1 is equals to your n2 u2। Sir, please explain from starting. ये वाला Yes, sir. देखो मेरे पास जो है ना गिवन है n1 is equals to 10 बेटा एंड दिस वन इज इन SI सिस्टम, और ये क्वांटिटी दे रखा है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या है ml t पावर -2। डन। हाँ देखो बेटा क्वेश्चन देखो बेटा, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो आराम से। 10 न्यूटन ऑफ द फोर्स इज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सिस्टम, यानी SI सिस्टम दे रखा है और एक न्यू सिस्टम कुछ भी हो सकता है बेटा, CGS सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यू सिस्टम दे रखा है इन विच द यूनिट ऑफ मास उसने ऑलरेडी न्यू सिस्टम में दे रखा है 10 kg, यूनिट ऑफ लेंथ इन द न्यू सिस्टम इज गिवन एज 10 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इन द न्यू सिस्टम इज गिवन एज 10 seconds। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फोर्स इन द न्यू सिस्टम यानी n2 की वैल्यू कितनी, तो मेरे पास n1 की वैल्यू कितना दे रखा है 10, कौन सा क्वांटिटी है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन ml t पावर -2, मुझे निकालना कितना है n2। n2 इज नथिंग बट फॉर मी विच यूनिट बेटा न्यू सिस्टम है। न्यू सिस्टम में उसने क्या क्या बोला, देखो न्यू सिस्टम में उसने क्या बोला, क्वेश्चन देख लो एक बार। न्यू सिस्टम में बोला कि मास इज इक्वल्स टू यानी m2 इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी बेटा 10 kg, isn't it? And L2 is equals to 10 meters and T2 is equals to 10 seconds। ठीक है, यहां पर भी देखो फर्स्ट सिस्टम में m1 की वैल्यू हो गई 1 kg, कुछ भी नहीं दिया ना इसलिए 1 kg ले रहा हूं। L1 is equals to 1 meter standard and T1 is equals to 1 second। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास n1 u1 is equals to n2 u2, isn't it? तो n1 लिख दिया मैं यहाँ पर, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t1 to the power of -2, isn't it? Must be equal to, this is m2 l2 sorry, पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा n2, उसके बाद यहाँ पर आएगा m2 l2 t2 to the power of -2, ठीक है ना। अभी निकालना है मेरे को n2, m1 की वैल्यू दे रखा है तो n2 इज इक्वल्स टू ये n1 आएगा, सो दिस इज योर m1 डिवाइडेड बाय m2, उसके बाद l1 डिवाइडेड बाय l2, उसके बाद t1 डिवाइडेड बाय t2 टू द पावर ऑफ -2। m1 की वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू मैंने डाल दिया, l2 की वैल्यू दे रखा है, m2 की वैल्यू दे रखा है 10 वो मैंने डाल दिया, दोनों kg से kgs कैंसिल हो रहा है तो वही यहाँ पर किया दो 1 kg डिवाइडेड बाय 10 kg, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स। इसको सिंपलीफाई कर लो कितना आ रहा है देख लीजिए, n2 की वैल्यू कितनी आ रही है एनीवन,
10. This will be equal to 10. Clear, beta? Is it clear? चलो एक क्वेश्चन पे से एक बार ट्राई कर लीजिए. In a system of unit of force is 100 Newton, unit of length is 20 meter, unit of time is 100 seconds. Then the unit of mass in this system of unit will be equal to how much? Unit of mass पूछ रहा है. Then बेटा ये क्वेश्चन का आंसर बताइए. The density of a material in the shape of cube, the shape of cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass. Be careful. If the relative error in measuring the mass and length are 1.5% and 1%. The question is the maximum error in determining the density is. चलिए करके बताइए. First option is 6%, second option is 2.5%, third one is 3.5%, and fourth one is 4.5%.
Anyone? आप लोग करिए बेटा आराम से. Everyone should give me the answer. कोई 3.5 बोल रहा है, कोई 4.5 बोल रहा है. So 4.5. कितना आ रहा है? 4.5. जावेद हुसैन, मदिया फिरदौस 4.5. स्माइल कितना आ रहा है बेटा? बुशरा अतीफा मन्नान वेरी गुड 4.5%. आ जाएगा, देखो ट्राई करिए आप लोग, कराए तो सर फिर इतना चाहिए बोलते फिर आप लोग. गिवन क्या है बताइए प्रॉब्लम में मुझे पहले. डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इंटू 100. ये कितना दे रखा है? 1.5%. परसेंटेज एरर इन मास. परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना है बेटा? 1%. Isn't it? Relative error in the measuring the mass and length are 1.5 and 1%. The maximum error in the determining the density. Density को फॉर्मूला क्या होता है बताइए? Density is Mass equals by to volume. mass divided by volume. यानी this is m. Volume will be equal to L cube. यानी this will be delta rho divided by rho is equals to delta m by your m plus 3 times of delta L by L. परसेंटेज पूछ रहा है तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100. तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना है बेटा? 1.5% है प्लस दिस वन इज 3 इंटू दिस वन इज 1%. 1.5 मतलब कितना बेटा? 3/2% 4.5. प्लस ऑफ योर 3%. सो कितना आ गया? 4.5%. 1.5 प्लस 3 होगा ना बेटा, सीधा सीधा. यही करने की जरूरत भी है, 3/2 भी लिखने की जरूरत नहीं है. 3 3 1 2 1 is 3 4 4.5%. डन बेटा. वेरी गुड.
इतने सारे पूरे क्वेश्चंस अपने को करना है बेटा अभी। चलो लेकर के बताइए जल्दी से। Everyone, if the error in the measurement of the radius of the sphere is 2%, then error in the determination of the volume of the sphere will be equal to how much? Sir, 6%. आ गया? Yes, sir. Very good. Everyone, सिर्फ 3 जने आंसर दिया करो। स्माइल, वेरी गुड। और वॉल्यूम इज इक्वल से क्या होता है बेटा? 4/3 पाई इंटू योर आर क्यूब। सॉलिड स्फीयर है ना बेटा, स्फीयर के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3। अगर मैं इसका एरर लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r, and that will be equal to 3 into कितना दे रखा है? परसेंटेज में दे रखा है 2%, यानी दिस विल बी इक्वल टू 6%। आ गया? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वाला करिए। The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length of 4% and 3%, then maximum error in the measurement of the density will be equal to how much? I hope you can do this one, everyone. चलो करके बताइए जल्दी से। 13%. Very good, 13%. बोलना बेटा, और जल्दी बोलना। Speed is very important. Same formula density का लिखे थे ना अपन? Density is equals to mass by volume, isn't it? So that is equals to your m, mass is equals to your L cube. So delta rho divided by rho, isn't it? So will be equal to how much? Percentage error दे रखा into 100, that will be equal to delta m by your m into 100 plus maximum बोला, तो ये हो गया प्लस ना माइनस आता, ये हो गया +3 into delta l by l into 100। अगर यहाँ पर वर्ड मैक्सिमम नहीं बोलता तो then would have been minus, isn't it? तो ये कितना है प्रॉब्लम में? 4% प्लस ये हो गया 3 into your 3%, and it is 4 plus 3 3 is 9, 4 plus 9 13, so this will be your 13%। आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखिए जल्दी से। The percentage error in the measurement of the mass and speed of 2%, 3%। अब पूछोगे सर क्या इतना इजी क्वेश्चन फाइनल में आता है क्या? Isn't it? देखो 2-3 बार रेगुलरली सिंपल क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछा गया हुआ एग्जामिनेशन हॉल में। The percentage error in the measurement of the mass and the speed of 2% and 3%. The error in the kinetic energy obtained by measuring the mass and speed will be equal to how much? Kinetic energy का फॉर्मूला बताइए बेटा। Kinetic energy will be equal to your half into m into v square, isn't it? यानी delta k divided by k Sir, is equal 8%. to delta m by your m plus 2 into delta v by v। कितना आ रहा है बेटा? 8%. वेरी गुड, 8%। और परसेंटेज में लिख रहा हूं तो डेल्टा k डिवाइडेड बाय k into 100 is equals to delta m divided by m into 100 plus 2 into delta v by v into 100, यानी डेल्टा m by m into कितना दे रखा है? ये 2% दे रखा, सो दिस इज 2। डेल्टा v by v कितना दे रखा है? 3%। तो ये हो गया 2% प्लस 2 3 is 6, 6 plus 2 8, तो ये हो गया 8%। डन बेटा? ये वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताइए। 2019 का जेईई में हो गया, नीट का क्वेश्चन है। In the experiment, the percentage of the error occurred in the measurement of the physical quantity A, B, C are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. The maximum percentage error in the measurement of x when x is equals to a square b power 1 by 2 divided by c power 1 by 3 and d cube will be equal to how much? चलिए बताइए जल्दी से।
Everyone should do it. 16%. 16%. Very good, 16%. आ गया? Can I write this one directly, beta? Delta x by your x is equals to 2 times of your delta a by a plus this will be equal to half into delta b by b plus this will be 1 by 3 into delta c by c plus 3 into delta d by your d. We will get 2 into 1 plus half into 2 plus this will be 1 by 3 into 3 plus 3 into ये हो गया 4. तो ये 3 और 3 चले गया, ये 2 और 2 चले गया. So this is 2 plus 1 plus 1 plus 3 4s are 12. So that will be equal to 16%. Done बेटा. Next one. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी वन वर्ड आंसर. अभी तो स्पीड बढ़ गई रहना चाहिए. In an experiment for the 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage errors 1%, 2%, 3% and 4%. Quantity P is calculated as A power 3 B square divided by C by T. Percentage error in P will be equal to Sir, how much? 14%. 14%. आ गया सभी को? Yes, sir. Delta P by P will be equal to 3 into delta A by A plus 2 into delta B by B plus delta C by C plus delta D by D. तो ये हो गया 3 into ये कितना दे रखा है 1% प्लस 2 into ये हो गया 2% प्लस ये डायरेक्टली दे रखा है 3% प्लस ये डायरेक्टली दे रखा है 4% into 100 कर लेना है. यानी this will be equal to 3 plus 4 plus 3 plus 4. So this will be equal to 14%. Done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करिए एक बार. A certain body weighs 22.42 grams and has a measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. The maximum error in density will be equal to your how much? कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो बेटा ट्राई करो. Take 1 minute of your time and try to do it better. पानी पीते रहिए. 2% आ रहा है, चलो देख लेते हैं. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, isn't it? इसका एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू योर डेल्टा m बाय m प्लस ऑफ योर डेल्टा v बाय v. डेल्टा m कितना दे रखा है बेटा? 0.01 डिवाइडेड बाय ये कितना दे रखा है? 22.42 ग्राम्स में है ना बेटा, तो इनटू 100 ऊपर, ठीक है ना. प्लस डेल्टा v कितना दे रखा है? 0.1, so it is 0.1 divided by this one is 4.7 cc into 100 परसेंटेज में. तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.001 into 100, ये चले जाएगा तो ये आ जाएगा 1 by 22.42 plus this will come for me 10 divided by 4.7, 0.1 into 100 बेटा. So this one is total in terms of percentage error, isn't it? अब इसको देख लीजिए approximately 1 by 22.42 और ये 10 by 4.7, 22.4 approximately देख लीजिए. 4.7 मतलब 5 के नजदीक है, तो ये जाएगा 2 में, तो ये हो गया प्लस 2, 22.42 यानी 1 by 22 यानी 1 by 22 यानी 0.04 ले लेते हैं. So this will be approximately 2.0 यानी nearby answer only 2% के नजदीक. So I can take this one as आ गया. चल तो एरर्स की कहानी यहाँ तक थी और नेक्स्ट क्लास में यानी कल के क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म कर लेंगे
then we'll try to do with your vernier calipers and screw gauge. उसके बाद एक फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे फॉर्मूला का पूरा, देन उसके बाद और थोड़े बहुत अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करके देन विल ट्राई टू कीप वन एग्जाम ऑन दिस वन, देन क्लोज करेंगे, देन विल डायरेक्टली गो विथ योर अदर स्कोरिंग चैप्टर। अगर पहला का अपने को 3 क्वेश्चंस आ गए चैप्टर में, देन विल बी डूइंग द 3 क्वेश्चंस। उससे पहले अपन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी होना है। मैं और एक 30 या 40 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट को खत्म करना है इन क्लास। और कल की क्लास में थोड़ा डिटेल में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। अगर हो सका तो एक बार आप लोग भी पढ़ के आ जाइए, क्योंकि आप लोग के पास ऑलरेडी बेसिक होगा ही, सिर्फ हम लोग उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, कल के क्लास के बाद यानी कल और परसों फ्रॉम फ्राइडे विल ट्राई टू स्टार्ट वन डेली वन ग्रैंड टेस्ट पेपर बेटा, पूरे सिलेबस पे। ठीक है, तो पूरे सिलेबस के फॉर्मूले शीट्स वगैरह है तो आप फॉर्मूले बुकलेट वगैरह है तो पढ़ते रहिए। तो डेली विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दी चैप्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस वगैरह रेगुलरली हम लोग कम से कम एक 15-20 क्वेश्चंस तो भी हर ग्रैंड टेस्ट में से करते रहेंगे। ओके, चलो टेक केयर बेटा, बाय।